हेलो गाइस, वेलकम टू एडुजैज। मैं हूं भावग्रह साहू। वेलकम टू दिस चैनल। सो रिसेंटली यू हैव हर्ड अबाउट LIC का IPO इज गेटिंग लॉन्च्ड। A lot of buzz on this IPO, the massive big IPO in Indian history। सब कोई न्यूज़पेपर इसके बारे में आउटलेट कर रहे हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट इसके बारे में अपना ओपिनियन दे रहे हैं। सो लेट अस डिस्कस इन दिस वीडियो कि कैसा रहेगा ये LIC का IPO, कुछ नोन एंड अननोन फैक्ट्स। सो गाइस डिस्कस करते हैं LIC के बारे में। लिसन टू मी गाइस, LIC एज ए कंपनी के बारे में, ना कि LIC का इंश्योरेंस प्रोडक्ट के बारे में। सो इनिशियली मैं आपको कुछ बेसिक फैक्ट्स बता देता हूँ रिगार्डिंग दिस IPO। So the IPO is getting launched on 4th to 9th of May। द प्राइस बैंड, जो प्राइस बैंड होता है वो है 902 से 949 पर शेयर। लॉट साइज है 15 इक्विटी शेयर्स पर लॉट। उसके बाद आपको एक स्पेशल डिस्काउंट मिलता है अगर आप एक LIC का पॉलिसी होल्डर है एंड आपका पैन उस पॉलिसी से लिंक्ड है। गाइस, यू आर ए policy holder of LIC and you are applying for this IPO, then you will get discount of 60 rupees per equity shares per share. Also, if you are a employee of LIC or a normal retail investor, you will get 45 rupees as a discount while applying this IPO। इस IPO से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया is planning to raise 21,000 crore and it will be listed in both NSE and BSE on May 17th 2022। दोस्तों, आप सभी ने कभी ना कहीं सुना होगा, आपके सराउंडिंग्स में कोई ना कोई आके आपको बोलता है कि उसने LIC कर लिया आज। हालांकि उसमें थोड़ा मिस्टेक होता है, वो LIC नहीं होता है, वो होता है इंश्योरेंस पॉलिसी। बट आपको पता है वो एक इंश्योरेंस पॉलिसी को LIC के साथ क्यों एसोसिएट किया? देयर कम्स द ब्रांड वैल्यू। एंड वो ब्रांड कैसे हुआ? तो ब्रांड शुरू हुआ इन 1956 में with a merger of 296 private companies, that is insurance companies, and with an initial capital of 50 million Indian rupees only. Can you imagine 50 million only? But now LIC is the largest asset manager, managing worth 36.8 trillion Indian rupees. It is the largest insurer of India, also having the presence globally in Kuwait, Qatar, Oman, UAE, Bangladesh, Nepal, and the list goes on. Oh my god. Covering 91% of the Indian mass territory, it enjoys 40 years of monopoly in this industry. Also, it has been recognized as domestically systematic important insurance industry as per IRDAI. That means if anything happens to LIC, government will step in and take the necessary steps that is required at that moment। Although I don't think LIC को कभी ऐसे चीज़ का रिक्वायरमेंट है, बट इट इज़ देयर। So coming to brand value, if I put the brand value of LIC in numerical terms, it is US dollar 8,655 million. And according to a research report by Brand Strength Index, LIC scores 84 out of 100. That means it commands a strong brand. Also, it is recognized as the third strongest and 10th most valuable global brand in 2021, and it enjoys very strongly likely monopoly over the market। Guys, remember, likely monopoly। चलो चलिए अभी डिस्कस करते हैं द मार्केट शेयर ऑफ LIC। LIC होल्ड्स 64.1% of total new premiums market share, while all other private players holds 35.9%। Remember guys, all other private players। अगर मैं इसका AUM के रिगार्डिंग बात करूँ, इट हैज ए मैसिव AUM of 36.8 trillion rupees, which is around 3.3 times of the total other private insurance companies। Remember guys, total
अदर प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज। ये हो गया आपका इंश्योरेंस कंपनी के साथ। इट इज़ ऑलमोस्ट 1.1x, that is 1.1 times of the total mutual fund industry's AUM. And if I compare it to the India's GDP, it is 19% of the India's GDP for the financial year 2021. So if we talk about the investment portfolios, that is the portfolio managed by LIC, so out of 100%, 37.5% इनका जाता है इन सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, 24.61% जाता है इन वेरियस स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, 8% इन कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स, एंड द रेस्ट 24.78% इन इक्विटी सिक्योरिटीज़। एंड दैट टू 90% ऑफ द इक्विटी सिक्योरिटीज जो कि शेयर्स में इन्वेस्टमेंट होता है, दोज आर द पार्ट ऑफ निफ्टी 200 इंडेक्स और BSE 200 index. Can you see the kind of stability, the stability in the portfolio the company is having in its investment products? In debt part also, LIC का जो 96% ऑफ द AUM है वो इन्वेस्टेड है ट्रिपल रेटेड माइनस सिक्योरिटीज में। तो आपको कभी सोच रहे होंगे ट्रिपल रेटेड माइनस ऐसा क्या होता है? गाइस, ट्रिपल रे माइनस रेटिंग इज ऑल्सो ए very good rating. So guys, let's talk about business now. Business, अरे बिजनेस एज इन न्यू बिजनेस प्रीमियम। LIC का पॉलिसी होता है ना, तो उसमें न्यू बिजनेस प्रीमियम होता है। उसी न्यू बिजनेस प्रीमियम में LIC चार्जेस इट्स एक्सपेंसेस। So in the category of new business premium from individual agents, LIC collects around 520 billion Indian rupees compared to 132 billion in other institutional insurance groups, which is almost 4 times. ये तो हो गया थोड़ा बिजनेस की बातें, न्यू बिजनेस प्रीमियम की बातें। बट बॉस, प्रॉफिट कितना कमाता है LIC? एज ए शेयर होल्डर हमें तो वही जानना है ना। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस स्लाइड में, सो इन FY19 द ROE ट्रेंड, दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रेंड, इज 404.6%। इन फाइनेंशियल ईयर 20 इट्स 382%। इन फाइनेंशियल ईयर 21 इट्स 81.7%। such a massive decline. I'll come up with it later, huh? Don't worry guys. If you see about the EPS trend of LIC, it's 4.25 in financial year 2019, in 4.29 in financial year 20, and 4.51 in financial year of 2021. So ये थी कुछ छोटी छोटी जानकारियाँ about LIC. Now comes the biggest question and the question of the year. Will you invest or will I invest in this IPO? और अभी हम लिस्टिंग के बाद देखेंगे क्या ट्रेंड चल रहा है, नहीं चल रहा है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करेंगे। गाइस, जब आप LIC के DRHP को देखेंगे, then you will mark that the new business growth in premium, the new premium business growth rate for the industry is 17%, but for LIC it is 7%. कुछ तो लोचा है दया। अरे आप बोलोगे नहीं नहीं कुछ लोचा नहीं है, इसमें कुछ रीजंस है। देर आर 2 to 3 reasons the new business premium is getting hit. So major reason is the online and offline disruption. तो गाइज आप लोग अभी नोटिस किए होंगे, तो ऑनलाइन पेनिट्रेशन ऑफ द फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और फाइनेंशियल सर्विसेज हैज बीन ड्रास्टिकली इंक्रीज थैंक्स टू द फाइनेंशियल इंक्लूजन। बट आप मार्क करेंगे ये LIC इतना ऑनलाइन में इतना प्रेजेंट नहीं है, इनके पास वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी नहीं है, कटिंग एज वेबसाइट्स नहीं है थ्रू विच दे कैन गो हैड, दे कैन एक्सपांड देयर बिजनेस। मतलब ऐसा नहीं है आपको ऑनलाइन LIC का पॉलिसी नहीं मिलेगा, यू कैन गो इट ऑनलाइन एंड यू कैन बाय देयर डायरेक्ट प्लान्स और एनी काइंड ऑफ ऑनलाइन प्रोसेस इज देयर। बट वो पहले से कभी एग्रेसिव नहीं रहे इन दिस ऑनलाइन प्रोपगेशन। क्यों? क्योंकि इसके पीछे भी एक रीज़न है।
LIC का जो मोस्ट ऑफ द प्रीमियम सोल्ड होता है ना, दैट इज थ्रू इंडिविजुअल एजेंट्स। रिमेंबर गाइस, इंडिविजुअल एजेंट्स बाय व्हिच LIC आज इतना बड़ा हुआ है। एंड वो इंडिविजुअल इंश्योरेंस एजेंट्स का LIC ख्याल रखता है। अगर डायरेक्ट और ऑनलाइन का चैनल आ जाता है, देन इट इज जस्ट सीरियस किक इन टू देयर रेवेन्यू ऑफ द एजेंट्स। तो LIC को तो खड़ा एजेंट्स ने किया है, तो अभी क्या LIC तो अपना एजेंट्स के अगेंस्ट में नहीं जा सकता, क्योंकि उन लोगों ने ही मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके उनको LIC को खड़ा किया है। So not so actively present in online channel is somehow the other hitting that gross business. That's why आपने देखा है, जो इंडस्ट्री अगर ग्रो कर रहा है 17% में इन टर्म्स ऑफ न्यू बिजनेस प्रीमियम, LIC के केस में दैट इज ओनली 7%। दिस इज द केस टू वरी। 93% ऑफ द पॉलिसी जो होता है LIC का, दैट इज सोल्ड थ्रू इंडिविजुअल एजेंट्स। सो ये हो गया ग्रॉस प्रीमियम बिजनेस का। एक दूसरा फैक्टर भी है, दैट इज द लो मार्जिन ऑन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स। क्या होता है ना गाइज, इंश्योरेंस कंपनी का जो प्रोसेस होता है, जो रेवेन्यू मॉडल होता है, उनका मेन रेवेन्यू आता है प्योर टर्म प्लान्स में। प्योर टर्म प्लान्स में जिसमें कि क्या होता है, इन्वेस्टर को रिटर्न ऑन प्रीमियम कुछ नहीं मिलता, क्योंकि प्योर टर्म प्लान में आपको एक डेथ बेनिफिट का स्कोप होता है। बट इन्वेस्टर सोचते हैं, अगर ये पूरा वेस्ट जाता है हमारा टर्म प्लान, क्योंकि मैं टर्म प्लान भरा और मुझे कुछ हुआ नहीं तो क्या। तो वो जो प्रीमियम पे करता है पर ईयर, हाफ ईयरली, जो भी है, जो इन्वेस्टर पे करता है फॉर द टर्म प्लान, वो तो वेस्ट होता है ना। ये साइकोलॉजी होता है हर एक इन्वेस्टर का। बट इसी केस में LIC ने क्या किया, टू ग्रो बिजनेस दे एडेड सम इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस that might be ULIPs or various what traditional plans। ये सब हो गया in addition to the basic death benefit that is covered by the insurance companies। तो ये एक नया प्रोडक्ट आया जिसको LIC के एजेंट्स ने और LIC ने बहुत पुश किया टू गेट न्यू बिजनेस प्रीमियम्स। एंड इसीलिए तो जब कोई एक इन्वेस्टर LIC करता है, वो क्यों बोलता है मुझे इतना दिन के बाद पैसा मिलेगा, क्योंकि वो जो अल्टरनेट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट होता है, जिसमें आपका कुछ पार्ट इन्वेस्टमेंट में और कुछ पार्ट इंश्योरेंस में इन्वेस्ट होता है, उसी प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करता है। एंड सम आफ्टर सम ईयर्स दे गेट सम रिटर्न, जो 4%, 5%, 6% जो भी है, वो रिटर्न मिलता है ऑन देयर अमाउंट इन्वेस्टेड। दैट्स वाई लोग बोलते हैं आज मैंने LIC कर लिया। बट एक कैच है इन दिस टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स। उसमें क्या होता है, आपको इन्वेस्टर को कुछ रिटर्न देना होता है। जस्ट आई डिस्कस 4%, 5%। उनको रिटर्न देने के लिए आपको अपना जो मार्जिन है, आपका जो मैक्सिमम एक्सपेंस रेशियो है, वो तो कंटेन करना पड़ेगा, वो तो लिमिटेड रखना पड़ेगा ना। जैसे म्यूचुअल फंड्स में 2.25% से कोई भी स्कीम चार्ज नहीं कर सकता है फॉर इट्स मैनेजमेंट। वैसे ही इंश्योरेंस लिंक्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के लिए IRDAI ने एक बेसिक लिमिट और बेसिक एक्सपेंसेस रेशियो चार्ज करके रखा हुआ है, एक लिमिट करके रखा हुआ है, बियॉन्ड विच दे कैनॉट गो। एंड LIC का साथ प्रॉब्लम वही है, LIC का साथ टर्म प्लान्स का शेयर बहुत कम है। एंड ये इस टाइप का जो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स है, इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स है, यूलिप और ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स, ये ज़्यादातर आप उनका ग्रॉस रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट करते हैं। और क्योंकि इसमें इन्वेस्टर को रिटर्न देना होता है, तो उनका अपना एक्सपेंस रेशियो भी कम रखना होता है। दैट्स वाई ये लो रेवेन्यू चार्ज कर पाते हैं। एंड इसीलिए लोग जनरली राजी हो जाता है टू पे ये हाई प्रीमियम फॉर LIC। सो उसके अगेंस्ट में हाई ब्रोकरेज भी देना पड़ता है टू LIC के जो एडवाइजर्स हैं और LIC के जो इंडिविजुअल चैनल पार्टनर्स होते हैं। तो अगर आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, अपने चैनल पार्टनर को इतना हाई रेवेन्यू दोगे, तो डेफिनेटली ना आपके पॉकेट से ही काट के दोगे ना, तो कहीं से तो हवा से पैसा आगे आएगा नहीं। दैट्स वाई देयर इज ए स्लो ग्रोथ इन दिस कंपनी। सो
LIC के लिए एक डिलेमा है, एक मिडवे है। वो अपना ट्रेडिशनल टर्म प्लान बिजनेस में फोकस करे और दिस इन्वेस्टमेंट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में ज़्यादा फोकस करे। सो ये चीज़ मैनेजमेंट को एज वेल एज शेयर होल्डर्स को कंसिडर करना पड़ेगा बिफोर इन्वेस्टिंग। थर्ड थिंग इज अनदर is that is no flexibility due to high control of the government। कभी कभी ऐसा होता है ड्यू टू सम रॉन्ग डिसीजंस और ड्यू टू अ सिस्टमेटिक रिस्क और एनी मार्केट कंडीशंस, कभी कभी इन्वेस्टर का रिटर्न्स घट जाता है। उसमें गवर्नमेंट क्या करता है, बोलता है ओके इस बार रिटर्न इन्वेस्टर का रिटर्न घट गया तो लेट अस नॉट चार्ज और लेट अस डू नॉट चार्ज आवर एक्सपेंसेस, rather let us give some return to investors। रिटर्न्स बनेगा तभी तो इन्वेस्टर्स आएंगे एंड न्यू बिजनेस प्रीमियम पे करेंगे सो दैट इन द ग्रॉस बिजनेस उनका और LIC का बढ़ेगा। बट ये रिटर्न आप कहाँ से दोगे? आप अपने पॉकेट से ही दोगे ना। इसके लिए आप अगर अपना पॉकेट हल्का कर रहे हो देन आपके पॉकेट के पास कुछ बचेगा नहीं, आपके पास कोई रिटर्न अर्निंग्स ही बचेगा नहीं। तो ये एक दुविधा है LIC के लिए। हाई इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट बट might we can expect it might change after this IPO। but if the this kind of situation continues, अगर आप अपना पॉकेट से काट के इन्वेस्टर को रिटर्न देने लगे देन आपके पॉकेट पे कुछ बचेगा नहीं। योर रिटर्न अर्निंग्स विल बी वेरी लेस विच विल अफेक्ट द शेयर होल्डर्स। बट उसके ऑपोजिट आप अगर इन्वेस्टर को रिटर्न देंगे नहीं, वो नया बिजनेस नया प्रीमियम भरेंगे नहीं, तो ये इन्वेस्टर और शेयर होल्डर्स इन बिटवीन फंसा हुआ है। बड़ी दुविधा है LIC के लिए। सो बिफोर इन्वेस्टिंग इन LIC शेयर, इन्वेस्टर्स नीड्स टू कंसिडर इसके रिगार्डिंग मैनेजमेंट और गवर्नमेंट को कुछ सोचना पड़ेगा। बिजनेस मॉडल को थोड़ा थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा। बिसाइड्स दैट कभी कभी ऐसा होता है गवर्नमेंट अपने एंटिटी से, अपने PSU एंटिटी से कुछ पैसा ऐसे एंटिटी में डाल देता है जो कि ऑलरेडी प्रॉब्लम में चल रहा है। जैसे LIC के केस में हुआ था, IDBI को बेल आउट करने के लिए और IDBI का जब प्रॉब्लम हुआ था देन LIC को इंटरफेयर करना पड़ा टू मेक थिंग्स हैपन, टू मेक थिंग्स गुड। जैसे दूसरे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, येस बैंक को लिक्विडिटी क्राइसिस से बचाने के लिए SBI को इंटरफेयर करना पड़ा। तो ये अपना 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 गवर्नमेंट का इनिशिएटिव होता है फ्रॉम द कॉर्पोरेट्स, इट हैज़ द PSUs, इट हैज़ टू प्रोटेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट थ्रू इज डिफरेंट एंटिटी। तो ये चीज़ को गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा आफ्टर द IPO इफ़ ये वैल्यूशन ये IPO को सक्सेसफुल होना है। कंसिडरिंग दिस थिंग्स, आप लोग सोच रहे हो कि अरे LIC का IPO के पास इतना प्रॉब्लम है तो IPO लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सो हियर कम्स द डिलेमा। आप लोग सुने हैं LIC इस साल का सबसे बड़ा IPO होने वाला है। अगर LIC का IPO लिस्टिंग होने के बाद अगर लॉस में जाए और जो लिस्टिंग लॉस हुआ है तो IPO में इन्वेस्टमेंट करने का आपको क्या फ़ायदा। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने ये LIC का IPO को और IPO का एम्बेडेड वैल्यू को एक लेवल पर रखा है जो ज़्यादा चीप नहीं है और ज़्यादा महंगा भी नहीं है। आपको एक लॉट अराउंड 15,000 रुपये के आसपास मिल जा रहा है। जो एम्बेडेड वैल्यू है दैट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोज टू द अमाउंट वी आर पेइंग नाउ डेज। आप लोग IPO के लिए जो वैल्यू अभी पे कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग जो फ्यूचर कैश फ्लो है वो कितना गुना में आपको मिलेगा। आपको जानकर खुशी होगी ये जो एम्बेडेड वैल्यू है LIC का, वो उसका जो वैल्यू आ रहा है वो आपका करंट प्राइस से ऑलमोस्ट इक्वल है। तो गवर्नमेंट इज ब्रिंगिंग एट द IPO एट a fair price, whereas if you compare it with the industry's embedded value जहाँ की आपका जो प्रीमियम होता है वो 3 to 4 टाइम्स होता है, LIC का जो वैल्यूएशन है 3 to 4 टाइम्स
cheap है as compared to the private insurance companies which are listed on the process. So अभी आप ये सोच रहे होंगे LIC का IPO में लेके उसका लिस्टिंग गेन होके करके आपको शेयर रिडीम करना चाहिए और लॉन्ग टर्म में रखना चाहिए। अगर आप इंडिया का जो बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर आईपीओ देखेंगे जैसे पेटीएम का था जो कि बहुत बड़ा होके आया था, उसमें देखेंगे आप वो आईपीओ तो बहुत बड़ा होके आया बट जो लिस्टिंग होता है वो सब होता है डिस्काउंट में। बट एज हेयर वो ये प्राइस आपका फेयर मिल रहा है तो इट इज़ पॉसिबल, देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट लिस्टिंग गेन आपको मिले, बट in the long term that is a problem. The government has to take some necessary steps to modernize LIC, to increase its future cash flows, to increase its future revenues, so that ये IPO ये जो गवर्नमेंट का स्टेप है टू डाइल्यूट द स्टेक विल बी सक्सेसफुल। सो ये था कुछ एनालिसिस एल आई सी के IPO के बारे में। इसमें आप अपना कमेंट डालिएगा इन द कमेंट सेक्शन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एडुजैज। तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।